بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں چوتھے سفر سے لوٹا تو کھیل کود ہنسی مذاق میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اپنی کمائی اور نفع پر اتنا خوش تھا کہ جو تکلیفیں میں نے اٹھائی تھیں وہ یاد نہ رہی، لیکن کب تک گھر بیٹھا رہتا؟ مجھے سفر کرنے کا چسکا پڑ گیا تھا۔ پھر دل نے اکسایا کہ دنیا کی سیر کو نکلو۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا، تجارت کے لیے عمدہ چیزیں خریدیں اور بھرے کا رخ کیا۔ وہاں سمندر کے کنارے مجھے ایک نیا بنا ہوا خوشنما اور شاندار جہاز نظر آیا۔ میں نے اسے خرید لیا، کپتان اور ملاح ملازم رکھے۔ اس کے بعد دوسرے سوداگر بھی میرے پاس آئے، انہوں نے کرایہ دے کر اپنا سامان جہاز پر لادا۔ ہم خوشی خوشی بصرہ سے روانہ ہوئے۔ ہم جزیرے اور سمندر سفر کرتے اور جہاں تجارت کا موقع ملتا وہاں رک کر اپنا مال بیچتے، نیا مال خریدتے۔ اسی طرح چلتے چلاتے ہمارا گزر ایک جزیرے سے ہوا۔ جزیرہ تو خاصا بڑا تھا مگر غیر آباد معلوم ہوتا تھا۔ جہاز پر سوار سوداگر جزیرے کی سیر کو نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں ایک سفید گنبد نما چیز ملی، وہ رخ کا انڈا تھا۔ سوداگروں کو پتہ نہ تھا کہ وہ کیا ہے۔ انہوں نے پتھر مار کر اسے توڑ ڈالا، ٹوٹتے ہی اس میں سے ڈھیروں پانی نکلا اور رخ کا بچہ دکھائی دیا۔ بچے کو انہوں نے کھینچ کر انڈے سے نکالا اور لگے اس کی ٹکا بوٹی کرنے۔ میں جہاز پر تھا، مجھے ان کی اس حرکت کی بالکل خبر نہ تھی۔ اتنے میں میرے ایک ساتھی نے کہا، ارے میرے آقا، چل کر اس انڈے کا تماشا دیکھ جو گنبد جیسا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو انڈا ٹوٹا پڑا تھا اور سوداگر رخ کے بچے کو کاٹ چکے تھے۔ میں نے کہا، تم نے کیا غضب کیا؟ رخ اگر ہمارا جہاز تباہ کر دے گا اور ہم سب مارے جائیں گے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور بوٹیاں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک دھوپ غائب ہو گئی اور اندھیرا چھانے لگا۔ ہم نے سر اٹھا کر دیکھنا چاہا کہ ہمارے اور سورج کے درمیان کیا چیز آ گئی ہے۔ پتہ چلا کہ رخ آ پہنچا ہے اور اندھیرا اس کے بڑے پروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ رخ نے دیکھا کہ اس کا انڈا ٹوٹا پڑا ہے تو بڑے زور سے چیخا۔ اتنی دیر میں اس کی مادہ بھی آ گئی اور دونوں جہاز کے گرد منڈلانے اور چنگھاڑنے لگے۔ میں نے چلا کر کپتان اور ملاحوں سے کہا، فوراً جہاز یہاں سے نکالو ورنہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ کپتان نے جلدی سے لنگر اٹھایا اور ہم جزیرے سے دور ہوتے گئے۔ رخوں نے ہمیں روانہ ہوتے دیکھا تو غائب ہو گئے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ جلد از جلد بہت دور نکل جائیں۔ خیال تھا کہ ہم خطرے سے بچ گئے، لیکن رخ پیچھا کرتے کرتے ہمارے سر پر آ موجود ہوئے۔ انہوں نے پنجوں میں اتنے بڑے پتھر اٹھا رکھے تھے کہ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ پہلے نر نے پتھر گرایا، کپتان نے جلدی سے جہاز کو موڑا اور ہم پتھر سے بال بچے۔ پتھر گرنے سے سمندر کی تہ نظر آنے لگی اور جہازوں پر اچھل گیا۔ اس کے بعد مادہ نے پتھر گرایا، وہ جہاز کے پچھلے حصے میں لگا۔ جہاز الٹ کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میں غوطے کھا رہا تھا کہ جہاز کا ایک تختہ ہاتھ آ گیا، اس پر چڑھ بیٹھا۔ ہوا کا زور اور لہروں کا اتار چڑھاؤ تختے کو بہانے گیا اور وہ ایک جزیرے سے جا لگا۔ تکلیف اور بھوک پیاس سے میری حالت مردوں کی سی ہو رہی تھی۔ بڑی دیر ساحل پر چت پڑا رہا۔ جب ذرا اوسان بحال ہوئے تو اٹھا اور ادھر الفادیر گھومنے لگا۔ جزیرہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ معلوم ہوا۔ ندیاں بہہ رہی تھیں، ہرے بھرے درخت پھلوں سے لدے کھڑے تھے، ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ میں نے اتنے میوے کھائے کہ پیٹ بھر گیا۔ ندیوں سے اتنا میٹھا پانی پیا کہ تازہ دم ہو گیا۔ آخر رات ہو گئی، میں بالکل اکیلا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈرتا تھا کہ کسی آفت سے واسطہ نہ پڑ جائے۔ اسی عالم میں نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو پھر سیر کو نکل پڑا۔ دیکھا کہ ایک ندی کے پاس حوض ہے اور حوض کے کنارے ایک بوڑھا بیٹھا ہے جس نے اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ میں نے دل میں کہا، ہو نہ ہو اس بوڑھے آدمی کا جہاز بھی ڈوب گیا ہے۔
ये भी मेरी तरह बचकर इस जजीरे पर आ गया। मैंने इसके पास जाकर सलाम किया। उसने इशारे से सलाम का जवाब दिया, मुंह से कुछ ना बोला। मैंने पूछा, बड़े मियाँ यहाँ क्यों बैठे हो? उसने सर हिलाया, अफसोस का इजहार किया और हाथ से इशारा करके कहा कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरे हौज के पास ले चलूं। मैंने सोचा कि बेचारे के साथ भलाई जरूर करनी चाहिए, मुझे सवाब होगा। मैंने बढ़कर इसे कंधों पर बिठा लिया और जिधर वो जाना चाहता तेनाधर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने कहा, लो बड़े मियाँ उतरो। तुम यहीं आने का इशारा कर रहे थे। लेकिन वो मेरे कंधों से ना उतरा बल्कि मेरी गर्दन को अपनी टांगों में किस लिया। मैंने देखा कि उसकी टांगें ऐसी काली और खुरदरी हैं जैसी भैंस की होती हैं। मैं डर गया और चाहा कि इसे नीचे गिरा दूं। उसने मेरी गर्दन पर पांव जमा लिए और इस जोर से गला दबाया कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने पिंडलियां उठाकर, जो पत्थर की तरह सख्त थीं, मेरी पीठ पर मारनी शुरू कर दी। मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं उठ खड़ा हुआ। वो इसी तरह मुझ पर सवार रहा और इशारे से इन दरख्तों की तरफ जाने को कहा जो फलों से लदे हुए थे। गरज उसने उतरने का नाम ही ना लिया, और जब मैं इसका कहना न मानता तो टांगों से मुझे मारता। ऐसा लगता जैसे कोई मुझ पर कोड़े बरसा रहा हो। मेरी हालत किसी कैदी की सी हो गई। वो हर वक्त मुझे उधर से अलिफादेर चलाता रहता। जब नींद आती तो अपने पांव मेरी गर्दन में लपेट कर सो रहता। बूढ़ा किया था, अजाब था। मैं दिल में कहता, मैंने तो अपने ख्याल में उसके साथ भलाई की थी, लेकिन भलाई बुराई में बदल गई। अब मैं उम्र भर किसी के साथ भलाई ना करूंगा। मैं खुदा से दुआ मांगने लगा कि मुझे मौत आ जाए, इस मनहूस बूढ़े से तो नजात मिलेगी। एक दिन मैं जजीरे में ऐसी जगह जा पहुंचा जहां बहुत से नारियल पड़े थे। इनमें कुछ खुश्क भी थे। मैंने एक बड़ा सा सूखा हुआ नारियल उठाया, उसका ऊपर का हिस्सा अलग करके साफ किया। अंगूर की एक बैल के पास जाकर इसमें अंगूर भरे और मुंह बंद करके धूप में रख दिया। थोड़े दिन में खालिस अंगूरी शराब तैयार हो गई। मैं रोज थोड़ी सी पी लेता ताकि चुस्ती आए और तकलीफ का एहसास कम हो जाए। बूढ़े ने मुझसे इशारे से पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये बड़े काम की चीज है, इससे पस्ती आती है और परेशानी दूर हो जाती है। ये कहकर मैं नाचने, तालियां बजाने और गाने लगा। बड़े मियाँ का दिल लिलचाया। उसने नारियल मुझसे लिया और इसमें जितनी शराब थी सारी पी गया। नशे में आकर वो झूमने लगा। इसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। जब मैंने देखा कि इस पर नशा चढ़ गया है तो उसे नीचे गिरा दिया। आजाद होते ही मैंने बदला लेने की ठान ली। एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाया। वो नशे में टांग जमीन पर पड़ा था। मैंने पत्थर उसके सर पर दे मारा और इसे हलाक कर दिया। बहुत दिन तक मैं इस जजीरे पर रहा, फल खाता, चश्मों से ठंडा पानी पीता और इस इंतजार में रहता कि कोई जहाज आए तो मुझे छुटकारा मिले और मैं सही सलामत वतन पहुंचकर घर वालों और दोस्तों से मिलूं। आखिर किस्मत ने साथ दिया। एक रोज समंदर में एक जहाज आता दिखाई दिया। उसने जजीरे के साहिल पर लंगर डाला और जहाज पर से लोग उतरकर उधर घूमने फिरने लगे। मैं दौड़ा हुआ उनके पास गया। सब लोग मेरे गिर्द जमा हो गए और पूछने लगे कि तो यहां कैसे आया। मैंने सारा माजरा सुनाया। इस पर उन्हें सख्त ताज्जुब हुआ और कहने लगे, जो शख्स तेरे कंधों पर सवार हुआ था वो शेख अल-बहर समंदरी बाबा के नाम से मशहूर था। जिस आदमी पर सवार हो जाता इसे मार कर ही छोड़ता। तूने कमाल किया कि इसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे खाना खिलाया और नए कपड़े दिए। मैंने फटे पुराने कपड़े उतार फेंके और नए पहन लिए। वो मुझे जहाज पर ले गए। दिन रात सफर करते करते एक शहर में पहुंचे जहां बिल्कुल समंदर के किनारे ऊंचे ऊंचे मकान थे।
बंदरों वाला शहर इसका नाम था। जब रात होती तो तमाम बाशिंदे कश्तियों में सवार होकर समंदर में निकल जाते। उन्हें बंदरों से डर लगता था जो रात के वक्त शहर पर धावा बोल देते थे। इधर में शहर में सैर को निकला अलिफादेर जहाज रवाना हो गया। मुझे खबर भी ना हुई। इस परेशानी के आलम में सर झुकाए बैठा था कि शहर का एक आदमी मेरे पास आया और बोला, ये मेरे आका, मालूम होता है तो इस शहर में नया आया है। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं परदेसी हूँ। मैं एक जहाज पर यहाँ आया था। जहाज वाले मुझे बताए बगैर रवाना हो गए। मैं यहाँ रह गया। इस आदमी ने कहा, उठे और हमारे साथ कुश्ती में सवार हो जा। अगर रात के वक्त शहर में रहा तो बंदर तुझे मार डालेंगे। मैंने इसके कहने पर अमल किया। वो कुश्ती को लेकर किनारे से 1 मील दूर ले गए। रात हमने वहां गुजारी। जब सुबह की रोशनी फैली तो वापस आ गए और कुश्ती से उतरकर अपने काम में मसरूफ हुए। हर रात उनका यही दस्तूर था। अगर रात के वक्त कोई शहर में रह जाता था तो बंदर इसे मार डालते थे। दिन के वक्त बंदर शहर से निकलकर बागों में फल खाने चले जाते थे। जहां मैं था वो काले लोगों का आखिरी मुक्त था। अब एक और अजीब बात सुनिए। जिन लोगों के साथ मैंने कुश्ती में रात गुजारी थी उनमें से एक शख्स ने आकर मुझसे पूछा, तुझे कोई पेशा भी आता है जो तो कर सके? मैंने कहा, मेरे भाई, मुझे कोई पेशा नहीं आता, ना कोई चीज बनाना जानता हूँ। मैं सौदागर हूँ। मेरे पास जहार भी था और बहुत सा माल भी। बदकिस्मती से जहाज समंदर में डूब गया। खुदा के हुक्म से मेरी जान बच गई। ये सुनकर वो शख्स उठा और कपड़े का थैला ले आया। मुझसे कहा, इसमें कंकर पत्थर भर ले और शहर वालों के साथ बाहर जा। उनसे कह दूंगा कि तेरा ख्याल रखें। बाहर जाकर जो काम वो करेंगे वही तुझे भी करना होगा। इस तरह तेरे पास इतनी रकम जमा हो जाएगी कि अपने वतन जा सके। चुनांचे मैंने थैले में कंकर पत्थर भर लिए। एक टोली शहर से बाहर जा रही थी। मेरे मेहरबान ने इस टोली से कहा, ये परदेसी है, से फल जमा करना सिखा दो ताकि रोजी कमा सके। ये सवाब का काम है। मैं इन लोगों के साथ हो लिया। हर एक के पास वैसा ही कंकरों पत्थरों से भरा थैला था जैसा मेरे पास था। चलते चलते हम एक लंबी चौड़ी खाई में पहुंचे जहां बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। उन पर कोई ना चढ़ सकता था। वहां पर हर तरफ बंदर ही बंदर थे। हमें आता देखकर बंदर दरख्तों पर जा चढ़े। लोग थैलियों से कुंगर निकालकर बंदरों को मारने लगे। जवाब में बंदर दरख्तों से फल तोड़कर लोगों पर बरसाने लगे। मैंने फलों को देखा तो वो नारियल थे। नारियल जमा करने की तरकीब समझकर मैंने एक बहुत बड़ा दरख्त ढूंढा जिस पर बंदरों का जमघटा था। मैंने इन पर पत्थर बरसाए और उन्होंने मेरी तरफ नारियल फेंके। यूं मैंने पूरा थैला नारियलों से भर लिया। नारियल जमा करके हम शहर लौटे। मैं अपने दोस्त के पास गया जिसने मुझे इस टोली के साथ जाने को कहा था। मैंने नारियल इसे दिए और शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, ये नारियल तेरे हैं, उन्हें बीच कर रुपए जमा करता जा। उसने अपने मकान की एक कोठरी की चाबी मुझे दी और यूं रोज इसी तरह नारियल जमा करता रहा। इसने कहा, यकीन है तेरे पास इतना रुपया इकट्ठा हो जाएगा कि तो अपने वतन वापस जा सके। मैंने ऐसा ही किया। रोज लोगों के साथ नारियल बटोरने निकल जाता। लोग मेरे साथ अच्छा सलूक करते और ऐसे दरख्त की तरफ भेजते जिस पर अच्छे अच्छे नारियल लगे होते। रफ्ता रफ्ता मेरे पास बहुत से नारियल जमा हो गए। इनमें से थोड़े बहुत बीच कर मैंने इस शहर में बनने वाली खास चीजें खरीद ली। इस काम में मुझे लुत्फ आने लगा। शहर के तमाम लोग भी मुझे से बड़ी मेहरबानी से पेश आते। एक दफा मैं समंदर के किनारे खड़ा था कि एक जहाज आकर लंगर अंदाज हुआ। इसमें सूद अगर थे। वो शहर आकर अपना माल बेचने और नारियल खरीदने लगे। ये देखकर मैं अपने दोस्त के पास गया, जहाज आने की खबर दी और कहा कि वतन वापस जाना चाहता हूँ। वो बोला,
जो तेरी मर्जी। और मैंने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। जहाज पर आकर कप्तान से बात तय की तो जो नारियल मेरे पास बाकी थे उन्हें उठवा कर ले आए। 1-2 दिन बाद जहाज रवाना हो गया। हम जिस जजीरे पर पहुंचते वहां नारियल बीच कर बदले में कोई चीज खरीद लेता। खुदा के फजल से मैंने इस तरह इससे 4 गन्ना ज्यादा कमाया जितना मेरे पास था और जो समंदर में डूब गया था। सफर करते करते हम एक जजीरे पर पहुंचे जहां लौंग और काली मिर्च पैदा होती थी। मैंने नारियलों के बदले लौंगी और काली मिर्चें खरीद ली। हमारा एक जगह गुजर हुआ जहां समंदर से मोती निकाले जाते थे। मैंने गौता लगाने वालों को थोड़े से नारियल देकर कहा, मेरी खातिर गौता लगाओ। उन्होंने गौता लगाया और बहुत से बड़े बड़े और कीमती मोती निकाल लाए और कहने लगे, ए मेरे आका वल्लाह तेरी किस्मत अच्छी। मैंने मोती लेकर अपने सामान में रख लिए। चलते चलते हम भरे जा पहुंचे। वहां मैंने 2-3 दिन कयाम किया। फिर बगदाद रवाना हो गया और अपने मोहल्ले पहुंचकर घर आया। घर वालों ने मेरे सही सलामत लौटने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मैंने अपना माल असबाब गोदामों में रखवाया। खैरात के गरीबों को नए कपड़े बनवा कर दिए। अहल खाना और दोस्तों को तोहफों से नवाजा। क्योंकि इस सफर में मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था, मैं निहायत खुश था और